Bismillahirrahmanirrahim. Yes, spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter first, FSC second year, and we are going to study the periodic trend in physical properties. The next physical properties we are going to study, that is electron affinity. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press bell icon so that you can get hold of my videos live on YouTube. Coming towards our article, what is called electron affinity? If we take the example of chlorine, the atomic number of chlorine is 17. Its first shell contains 2 electrons. Second shell contain 8 electron, and third shell contains 7 electron. If we add one more electron in its valence shell, it will gain stability. When it will gain stability, the energy will be liberated. That energy is called as electron affinity. There are few conditions required for electron affinity, which are: atom must be isolate and it must be in gaseous state. Atom must be isolate and in its gaseous state, and we have to add by adding one electron in its valence shell. When we add one electron in its valence shell, it will form uni-negative ion. The amount of energy liberated during this process is called as electron affinity. This is simple one. This is the basic concept of electron affinity. If we add one electron in chlorine atom, it will gain negative charge, and its value is minus 349 kilojoule per mole. What is the definition of electron affinity? It is amount of energy evolved when one electron is added. और कहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा? इन वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेट एटम. और आइसोलेट एटम कब होगा? इन इट्स गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा? टू फॉर्म यूनी-नेगेटिव आयन इज कॉल्ड, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ chlorine, this is the statement of electron affinity. If we take the example of chlorine, its electronic configuration is 2, 8 and 7. Its atomic number is 17. If we add one electron in its valence shell, it will form Cl-1, 2, 8 and 8. The amount of energy liberated during this process is minus 349 kilojoule per mole. That is called as electron affinity. तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी. नेगेटिव मीन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. और इसके यूनिट्स क्या क्या होंगे?
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो यूनिट्स होते हैं, इट मे बी मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, and third one is electron volt. These are the three units which can be used for electron affinity. Now what is called as higher electron affinity? Or what is called as second electron affinity? If we add one electron in oxygen whose atomic number is 8, 2 and 6, first shell contain 2 electron and second shell contains 6 electron. If we add one electron in its valence shell, it will gain stability, it will gain -1 चार्ज. हम ये जानते हैं जब भी कोई एटम स्टेबल होने लगता है उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है. तो जब भी कोई एटम की एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वहाँ से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है. तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी? फर्स्ट -141 किलो जूल पर मोल. इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, क्योंकि जब भी एटम अनस्टेबल से स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर कम होगी वहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. और जब बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो चुका है, -1 इस पर चार्ज आ चुका है, इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो फिर ये -2 हो जाएगा. 2 and 8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी. तो इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो प्लस में होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव while फर्स्ट इज नेगेटिव. पहली नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है. ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर ये है बेटा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एनर्जी इवॉल्व होती है. तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके होते हैं उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो फिर क्या होगा? फिर उससे सेम चार्ज जो होंगे दे विल स्टार्ट टू रिपेल. वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर रिपेल करेंगे उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बजाय इसके कि एनर्जी इवॉल्व हो, वी हैव टू गिव एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, नेगेटिव की रिपल्शन. दैट्स वाई सेकंड इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक एंड फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक. एंड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट वन इट्स फैक्टर्स. फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. नंबर 2, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की सलाहियत इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ शेल्स के. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? शील्डिंग इफेक्ट के. ये सब कुछ के ये इनवर्स होती है. अब हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. और नंबर 5 फैक्टर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फॉर दी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह. जितनी खाली जगह ज़्यादा मिलेगी उतना एटम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करेगा. तो अब उसके बाद आ जाता है इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अगर हम देखना चाहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो वो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप.
ग्रुप में हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं। और टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम साइज जो है वो क्या होता है? इंक्रीज। क्यों साइज बढ़ता है? क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। और क्या बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो जितना साइज बढ़ेगा ये सारे फैक्टर भी बढ़ेंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत कम होती जाएगी। मीन इलेक्ट्रॉन की सलाहियत जो है ये साइज के इन्वर्स होती है। जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। मीन मेटल्स की का साइज बड़ा होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत कम है। और नॉन मेटल्स का साइज जो है वो छोटा होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सलाहियत ज़्यादा होती है। और लास्ट ट्रेंड जो है वो है हमारे पास पीरियड का। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज होती है? तो डियर स्पेक्टेटर्स, पीरियड्स में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है? नंबर 1, शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट दैट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर ये दो फैक्टर कांस्टेंट है तो साइज डिक्रीज क्यों होता है? साइज डिक्रीज होने की वजह ये है लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज छोटा होगा। जितनी साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सलाहियत ज़्यादा होगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है। होनी फ्लोरीन की ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसका साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है और फ्लोरीन की -322 है। तो उसकी ज़्यादा क्यों है? इस वजह से ज़्यादा है कि फ्लोरीन का जो छोटा साइज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है। तो अगर थिक होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी कम होती है। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। वजह अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मो नहीं सकते, उसका साइज छोटा है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देगा। क्लोरीन ऐड होने देगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, खाली जगह ज़्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की कम है। दिस इज द आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Hope you are liking my videos. If you are liking my videos, please subscribe my channel, press bell icon to get whole of my videos.